Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. We are in the chemistry class 9th. We have started unit number 5 which was about the physical states of matter. Today we will start our topic solid state as we have discussed the properties of gaseous and liquid. Now we are going to start solid state. It's page number 89. Solid state, it is third state of matter which has definite shape and volume. In solid state, the molecules are very close to one another and are closely packed. The intermolecular forces are so strong that particles become almost motionless. Hence, they cannot diffuse. Solid particles possess only vibrational motion. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. अब यहाँ पर सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है. हमने ये प्रॉपर्टीज़ पहले भी डिस्कस की हैं कि जो सॉलिड्स हैं इनकी शेप फिक्स्ड होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका. इट मीन्स डैट कि जो उनकी शेप रहती है वो वही शेप रहती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द नंबर ऑफ द सॉलिड स्टेट्स इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टेबल. आपके पास अगर घर में ड्राइंग रूम में एक टेबल पड़ा हुआ है तो वो टेबल एज इट इज़ टेबल ही रहेगा. वो कहीं पे भी जाके अपनी शेप या वॉल्यूम को चेंज नहीं करता. ठीक है. तो उसकी जो शेप और वॉल्यूम है वो वही शेप और वॉल्यूम रहेगी. आप उसको कहीं पे भी रख दें. Typical properties, solid exhibit typical properties, a few of which are discussed here. Melting point, solid particles possess only vibrational kinetic energy. इनकी सिर्फ वाइब्रेशन होती है और इनकी कोई भी मोशन नहीं होती. वाइब्रेशन क्यों होती है? बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं. इनके दरमियान में स्पेस निग्लिजिबल होती है जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. When solids are heated, their vibrational energies increase and particles vibrate at their mean position with the higher speed. ठीक है. कि जब इनको हीट करते हैं हम लोग तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है. काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन. तो ये अपने फिर मेन पोजीशन पर इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है. मेन पोजीशन मीन्स जिस पोजीशन पर ये होते हैं उसी पोजीशन के आगे और पीछे ये मूव करते हैं, उसको मेन पोजीशन बोलते हैं. इफ़ द हीट इज़ सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली, अ स्टेज इज एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड देन बिकम मोबाइल. At this temperature, solid melts. The temperature at which a solid start melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point. Highlight करें इस point को. The ionic and covalent solids make network structure to form macromolecules. So all solids have very high melting point. Solid converted into the liquid and liquid converted into the solid. This condition is the dynamic equilibrium. Rigidity, the particles of solids are not mobile, they have fixed positions, therefore solids are rigid in their structure. Density, solids are denser than liquid and gases because solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their particles. Therefore, they have the highest densities among the three states of matter. For example, density of aluminium is 2.70 gram per centimeter cube, iron is 7.86 gram per centimeter cube, and gold is 19.3 gram per centimeter cubes. डेंसिटी हम लोगों ने पॉइंट्स लिक्विड में भी डिस्कस किया है, गैसेस में भी डिस्कस किया है, और हमें ये पता है जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. इसकी रीज़न क्या है? कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. देयरफॉर सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. अकॉर्डिंग टू देयर जनरल अपीयरेंस, solids can be classified into two types: amorphous solids and crystalline solids. Amorphous solid. Amorphous means shapeless.
हाईलाइट करें। ऐसे सॉलिड जिनकी कोई भी शेप नहीं होती उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज और देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जिनकी रेगुलर शेप नहीं होती, अगर हम उनको हीट करें या उन पर कोई भी कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर कुछ भी उन पर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप लूज़ कर देते हैं। रेगुलर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है, उनको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी भी यही रीज़न है, बिकॉज दे डू नॉट हैव रेगुलर शेप, सो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। Plastic, rubber and even glass are amorphous solids as they do not have any sharp melting point. आपके यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास की। आपके पास ये तीनों चीज़ें डिफरेंट कंडीशंस में प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इनको रीयूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये चीज़ एक डिस्ट्रॉय हो गई है तो आप उसको कंडीशंस अप्लाई करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उसको किसी भी शेप में लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3-dimensional पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव डेफिनेट सरफेसेस और फेसेस। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स जिनके रेगुलर पैटर्न होता है उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और ऐसे सॉलिड जिनका रेगुलर पैटर्न नहीं होता उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन को हाईलाइट करें। ईच फेस हैज़ डेफिनेट एंगल विद द अदर। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि इनकी शेप रेगुलर होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड etc. Allotropy, the existence of an element in more than one forms in same physical states is called allotropy. Allotropy is due to, डेफिनेशन को हाईलाइट करें, ऐसे सॉलिड्स जो ऐसे एलिमेंट्स किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो एक या एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। The existence of 2 or more kinds of molecule of an element, each having different number of atoms, such as allotropes of oxygen are oxygen O2 and ozone O3. ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है ऑक्सीजन की। अब एलोट्रॉप किसे कहते हैं? एलिमेंट्स विच इज़ एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ऐसे एलिमेंट्स जो एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जो एलोट्रॉप्स हैं, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन O2 विच इज़ यूज फॉर द रेस्पिरेशन एंड ओजोन O3 विच इज़ एक्ट एज अ ग्लास कवरिंग अराउंड द अर्थ। Different arrangements of 2 or more atoms or molecules in the crystals of the element, such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of molecules S8 in the crystals. ये different arrangement की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले जो एलोट्रॉपी की कंडीशन है, एलोट्रॉपी की दो कंडीशंस हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से हो सकते हैं, और सेकंड कंडीशन इनकी क्या हो सकती है? अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से भी वो एलोट्रॉपी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस at a given temperature. The arrangement of atom also change with the change of temperature and new allotropic is formed. ठीक है, जब अगर हम उनका टेम्परेचर चेंज कर दें तो एक ही एलोट्रॉप के एलिमेंट्स के एलोट्रॉप डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। द टेम्परेचर at which one allotrope change into another is called transition temperature. हाईलाइट करें इस डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल, transition temperature of sulfur is 96 degrees C. Below this temperature, rhombic form is stable. If rhombic form is heated above 96 degrees C, its molecule arrange themselves to give monoclinic form. नीचे आपके पास ये ट्रांजिशन टेम्परेचर दिए गए हैं सल्फ़र के, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। Next is the white phosphorus is very reactive, poisonous and waxy solid. It
exists as tetraatomic molecule while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and a brittle powder. It was our overall today's lecture. We will answer the questions test yourself 5.4 and 5.5 in the next lecture. Your homework is that you have to mark the questions answer of the question test yourself 5.5. We will discuss both test yourself 5.4 and 5 in the next lecture. Thank you.